Hello students, welcome to the class. So today we are going to start calculus, that is integration and differentiation. तो आज की क्लास में हम differentiation start करेंगे and then we'll go to integration and we'll do it from the point of application of NEET examination. Okay, let's get started. So this comes under the mathematical tools section. तो सबसे पहले हम जो सबसे पहला फॉर्मूला हमें स्टडी करना है डिफरेंशिएशन, दैट इज सबसे पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन, इसको लिखा कैसे जाता है. ओके, सपोज आई राइट dy by dx. dy by dx का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x. Okay, or it can also be said as rate of change of y quantity with respect to x quantity. ओके, तो यही dy by dx हमें क्या निकालना है. वी हैव टू फाइंड द dy by dx फॉर वेरियस फंक्शंस. ओके, तो उन्हीं फंक्शंस को हम स्टडी करेंगे और उनके फॉर्मूला को अंडरस्टैंड करेंगे. राइट, तो सबसे पहला जो फंक्शन है हमारे पास which we want to derive is we'll write differentiation of algebraic functions. ओके, algebraic functions कौन से होते हैं? जैसे मैंने लिखा y equal to x, it is an algebraic function. जैसे मैंने लिखा y equal to x square, it is an algebraic function. जैसे मैंने लिखा y equal to x plus x square, it is an algebraic function. जैसे मैंने लिखा y equal to 3x cube, it is an algebraic function. Okay? जैसे मैंने लिखा y equal to under root of x, it is also an algebraic function. ओके, अब इनको डेरिवेट कैसे करना है, इनका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, वही फॉर्मूला हम स्टडी करेंगे. जो सबसे पहला फॉर्मूला आएगा डिफरेंशिएशन में. ओके, सो द फर्स्ट फॉर्मूला इज y इक्वल टू x रेज्ड टू द पावर n. अगर मुझे अब इसका डेरिवेटिव निकालना है dy by dx, सो dy by dx इज रिटन एज n की पावर को ले आएंगे नीचे x n minus 1. This is the formula for dy by dx of x to the power n. Clear? Okay. अब अगर किसी से पूछा जाए find the derivative of y equal to x square. Okay, find the derivative of y equal to x square with respect to x. तो dy by dx करेंगे. बताओ बेटा यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? Here n is equal to 2. तो dy by dx कितना आ जाएगा आपका? dy by dx will be 2x to the power 2 minus 1. So dy by dx will be equal to 2x. Clear? Fine. Next example. ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना है. This is the derivative of any algebraic function. Next, suppose I write y equal to x cube. इसका dy by dx करेंगे. So dy by dx कितना आ जाएगा? What is the value of n here? 3. It will be 3x to the power 3 minus 1. That will be equal to 3x square. So differentiation of y equal to x cube with respect to x is 3x square. Clear? अब एक और करते हैं हम एग्जांपल इसका. Suppose I write y equal to under root of x. y equal to under root of x. इसको डेरिवेट करो with respect to x. Differentiate this function with respect to x. यहाँ पे बताओ n की वैल्यू कितनी है? इसको हम एक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे x पावर 1 by 2. Here n is equal to 1 by 2. So dy by dx will be dy by dx हो जाएगा आपका 1 by 2 multiply by x to the power 1 by 2 minus 1.
so this will be 1/2 x to the power -1/2. ओके, ये पावर नेगेटिव में है, ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चली जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 x power 1/2. This can further be written as 1/2 under root x. Clear? So the value of dy by dx is equal to 1/2 root x. Clear है? The first formula is done for differentiation of the algebraic function. Clear है? Okay. अब सपोज करो मैंने लिखा y इक्वल टू 9. व्हाट इज 9? 9 इज ए कांस्टेंट. अब बताओ इसका डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट में, तो कैसे करें? यूजिंग द सेम फॉर्मूला. सो कैन आई राइट 9 एज 9x टू द पावर 0. अब dy by dx करो, dy by dx will be equal to 0 into 9x to the power 0 minus 1. Anything multiplied by 0 is 0. So in short we can say that I can write a statement here. The derivative of a constant is always 0. ओके. अब अगर आपको कोई भी वैल्यू दी गई होगी, जैसे बोला जाए y इक्वल टू पाई, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फॉर y इक्वल टू पाई, इट विल बी 0. dy by dx इक्वल टू 0 हो जाएगा. कोई भी नंबर ले लो, रैशनल या इरैशनल, y इक्वल टू √2, dy by dx कितना आएगा? 0. तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी उसका डेरिवेशन क्या होगा? 0, यानी कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं करेगी. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कांस्टेंट. ओके. अब इसी में सपोज करो ऐसे आ जाए आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. सपोज एक्सप्रेशन ऐसे आ गया y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1. इसका डेरिवेटिव निकालो, तो dy by dx कितना आ जाएगा? इसमें हम हर एक टर्म को सेपरेटली डिराइव करेंगे, डेरिवेट करेंगे. ओके. एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? दैट विल बी 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का आएगा 2x. 1 इज ए कांस्टेंट, इसका 0 हो जाएगा. तो dy by dx कितना आ जाएगा आपका? 3x स्क्वायर प्लस 2x. कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने? y इक्वल टू एक्स पावर n, dy by dx इज n x पावर n minus 1. क्लियर है? अगर आपको algebraic function is, if the algebraic function is given as a sum of the expression, then you have to derivate each terms individually. Okay, clear? नेक्स्ट आते हैं हम, इससे ज्यादा आपका यूज नहीं होने वाला है नीट एग्जाम में. ये तो हो गए हमारे अलजेब्रिक फंक्शन. नेक्स्ट आते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ और डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इनका प्रूफ नहीं करना है, वी जस्ट हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज. ओके. तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो है हमारे पास sin x. y इक्वल टू sin x. सेकेंड इज y इक्वल टू cos x and third is y equal to tan x. इन तीनों का डेरिवेटिव लिखेंगे हम, तीनों की डिफरेंशिएशन की वैल्यू लिखेंगे. तो dy by dx कितना आएगा? ध्यान रखना साइन का डेरिवेशन करेंगे अगर हम x के रिस्पेक्ट में, so dy by dx will be cos x. cos x का डेरिवेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dy by dx कितना आएगा? माइनस साइन x. और tan की डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dy by dx आएगा secant स्क्वायर x. ये फॉर्मूलाज आपको एज इट इज रिमेंबर करने हैं. इनका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है. ओके. क्लियर है? ये तीन फंक्शंस का डेरिवेशन आपको याद रखना है, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन की वैल्यू याद रखनी है आपको. ओके. दे विल बी यूज्ड इन द क्वेश्चंस व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम काइनेमेटिक्स एंड
एसी करंट और डीसी करंट में भी कभी कभी साइन और कॉस को एनकाउंटर करना पड़ता है। ये आ गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर है इसमें? ओके। अब अगर आपके पास ऐसा फंक्शन आ जाए, सपोज इफ आई राइट ए फंक्शन y इक्वल टू x प्लस साइन एक्स, अगर दोनों फंक्शन को ऐड कर दिया तो बताओ डेरिवेशन कैसे आएगी, इसकी डेरिवेटिव कैसे आएगा? dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? इंडिविजुअली डेरिवेट करेंगे हम, x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा x के रिस्पेक्ट में, x की पावर 1 है तो आएगा 1, x पावर 1 माइनस 1 प्लस साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos x। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 1 प्लस cos x। क्लियर? नेक्स्ट, इज इट क्लियर? तो अभी तक हमने कितने फॉर्मूला किए? वी हैव डन 3 फॉर्मूला। सो व्हाट इज द डेरिवेशन? 4 फॉर्मूला वी हैव डन। व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ y equal to sin x, that is cos, y equal to cos x minus sin x, y equal to tan x secant square x, and what is the derivative of y equal to x power n, that is n x power n minus 1. These 4 formulas we have remembered till now. Okay. इसके बाद आते हैं हमारे लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है, तो मैंने लिखा y इक्वल टू ln ऑफ x, दिस इज रेड एज नेचुरल लॉग ऑफ x, y इक्वल टू e पावर x, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, इनका डेरिवेटिव आपको एज इट इज रिमेंबर करना है, दे कैन बी यूज समवेयर। अब इसका dy बाई डी एक्स जो होता है, ध्यान रखना हो क्या होता है, log x का नेचुरल लॉग ऑफ x का dy बाई डी एक्स होता है वो 1 बाई x होता है, और e पावर x का डेरिवेटिव जो होता है dy बाई डी एक्स, इट इज सेम। इसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। क्लियर है? ये 2 फंक्शंस भी क्लियर हो गए, फॉर्मूला याद हो गए आपको ये भी। सो लेट्स राइट ऑल द फॉर्मूलाज टुगेदर नाउ। ओके, आई विल रब इट ऑफ। मैं सारे फॉर्मूलाज अभी तक जितने भी हमने स्टडी किए हैं इनको लिख देता हूं। We are going to remember all these formulas. Okay, they are going to be used throughout the physics in 11th and class 12th. पहला है y equal to x power n, तो dy by dx कितना आ जाएगा? That will be n x power n minus 1. y equal to sin x, dy by dx कितना आ जाएगा इसका? cos x, y equal to cos x, dy by dx कितना आ जाएगा? माइनस साइन एक्स, y इक्वल टू tan x, dy by dx कितना आ जाएगा? secant स्क्वायर x, y इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x, dy by dx कितना आएगा? 1 बाई x, y इक्वल टू e पावर x, dy by dx कितना आ जाएगा? e पावर x। वेरी सिंपल फॉर्मूला, you can remember all of them. Okay, 1-2 बार इनको लिख लोगे कभी नहीं भूलेंगे। इनका प्रूफ हमें नहीं करना है, we just have to remember as it is. Okay, all these formulas are done. कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं हम इन पे, so that you can gain confidence. उसके बाद हम और क्वेश्चंस करेंगे इस पे। देयर इज वन, इफ 2 फंक्शंस आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, उनको हम कैसे डेरिवेट करेंगे। जैसे अभी हमने किया कि अगर 2 फंक्शन एडेड हैं तो उनको डिफरेंशिएट करने का क्या तरीका है, दोनों को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करो और ऐड कर दो, या सब्ट्रैक्ट भी होंगे, दोनों को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करो और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो लेट्स लुक एट सम मोर क्वेश्चंस। सो विद इन दिस लेक्चर you will understand complete derivatives of the functions. तो जैसे मैंने लिखा y इक्वल टू x प्लस ई पावर x, तो बताओ इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, जल्दी से बताओ। यस, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा इसका, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, e पावर x आ जाएगा। डन, वेरी इजी। What is the differentiation of y equal to
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, डिफरेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस का क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स। क्लियर? कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। इज इट क्लियर? सीधे फॉर्मूला का अप्लाई करना है, वी आर गोइंग टू अप्लाई डायरेक्टली द फॉर्मूला। इससे ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं करनी है आपको, नीट में इससे ज्यादा कहीं पे भी यूज नहीं होने वाली है। अब मैंने लिखा y इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। आई एम राइटिंग दैट फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx एट x इक्वल टू 0। ठीक है, देखो इसको क्या करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, dy by dx फाइंड करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन का, फिर x की जगह 0 पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बताओ बेटा dy by dx कितना आएगा, dy by dx विल बी इक्वल टू 2x क्यूब, 2 को एज इट इज लिखेंगे, 3 की पावर नीचे आ जाएगी इंटू x 3 माइनस 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 नीचे पावर आ जाएगी x 2 माइनस 1 प्लस x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा 4 और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो dy by dx कितना आ गया आपका 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। क्लियर? ये आ गया dy by dx। अब मुझे dy by dx किस वैल्यू को फाइंड करना है, एट x इक्वल टू 0। तो इस एक्सप्रेशन में हम x की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे, x को 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये वाला टर्म भी 0, ये वाला टर्म भी 0 और एंड में आंसर जो आएगा वो 4 आ जाएगा। सो dy by dx at x equal to 0 will be equal to 4। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चंस आपके कहाँ कहाँ पे यूज होंगे, they will be used in acceleration and velocity for finding the acceleration and velocity and the displacement, which we will see in the next chapter, that is kinematics of motion। क्लियर है? आपका डिफरेंशिएशन हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। y इक्वल टू साइन एक्स प्लस tan x। ठीक है, आई एम राइटिंग फाइंड dy by dx एट x इक्वल टू पाई बाई 4। निकालो dy by dx कितना आएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, tan x क्या हो जाएगा माइनस सीकेंड स्क्वायर x। अब मुझे x की जगह पाई बाई 4 पुट करना है, तो dy by dx एट x इक्वल टू पाई बाई 4 विल बी इक्वल टू cos पाई बाई 4 माइनस सीकेंड स्क्वायर पाई बाई 4। cos पाई बाई 4 कितना होता है 1 बाई रूट 2 और सीकेंड क्या होता है cos का उल्टा, तो सीकेंड पाई बाई 4 कितना हो जाएगा रूट 2। तो यह जाएगा आपका 1 बाई रूट 2 माइनस 2। क्लियर? दैट्स इट इन द डिफरेंशिएशन। ओके, अब हम दो और फॉर्मूलाज कर लेते हैं, वेरी बेसिक फॉर्मूलाज, कहीं कहीं पे यूज हो जाते हैं। ऑल्दो ये जो अब मैं फॉर्मूला दिखाने वाला हूं ये ज्यादा यूज नहीं होंगे, बट यू शुड नो देम। ओके, अब सपोज करो अगर आपके पास दो फंक्शंस है, दे आर मल्टीप्लाई टुगेदर। सपोज इफ यू आर गिवन ए फंक्शन दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन और आपसे कहा जाए फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन, तो कैसे करेंगे। सपोज आई राइट दैट y इज ए फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ u एंड v। ओके, और मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में dy by dx। तो कैसे करेंगे, तो इसमें क्या करना है हमने, इसमें एक को हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, एक को सेकंड फंक्शन मान लेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख दूंगा u, मल्टीप्लाई में सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दूंगा, प्लस फिर सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिखूंगा और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दूंगा। ओके, ये आ गया आपके पास फॉर्मूला व्हेन टू फंक्शंस आर मल्टीप्लाइड टुगेदर। ओके,
इसके 2-3 एग्जांपल कर लेते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला मोर एफिशिएंटली. ओके, नोट डाउन दिस फॉर्मूला. Let me write this formula again. Y equal to UV. तो dy by dx क्या हो जाएगा? U dv by dx plus V du by dx. Very simple. एक क्वेश्चन ले लेते हैं. Suppose y equal to x sin x. दोनों अलग अलग फंक्शन है कि नहीं है? एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. अब इसका मेरे को dy by dx निकालना है. किसी को भी फर्स्ट फंक्शन मान लो और किसी को भी सेकंड फंक्शन मान लो. तो dy by dx कितना आ जाएगा? x को एज इट इज रखो इनटू dy by dx ऑफ sin x प्लस फिर sin x को ऐसे ही लिखो dy by dx ऑफ x. तो dy by dx क्या हो जाएगा आपका? जाएगा x. व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ sin विद रिस्पेक्ट टू x? दैट इज cos x प्लस dx by dx 1 डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1. वो हमने पढ़ा था. sin एज इट इज आ जाएगा. तो ये आ गया आपका आंसर. क्लियर? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. y इक्वल टू x नेचुरल लॉग ऑफ x. इसको डिफरेंशिएट करके बताओ. तो dy by dx क्या हो जाएगा? सीधे ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखो मल्टीप्लाई बाई डिफरेंशिएशन ऑफ log x. फिर log x को ऐसे ही लिखो डिफरेंशिएशन ऑफ x. तो बताओ नेचुरल लॉग ऑफ x की डिफरेंशिएशन कितनी होती है? 1/x. तो ये हो जाएगा x/x प्लस ln ऑफ x. तो आंसर आएगा 1 प्लस ln ऑफ x. क्लियर? इज इट क्लियर? गुड. अब जो लास्ट है इसमें आता है आपका कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करना होता है. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट यू शुड नो इट. सपोज मैंने एक फंक्शन लिखा फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x. ठीक है. अब इसका dy by dx कैसे लिखा जाता है? ये होता है f डैश g ऑफ x मल्टीप्लाई बाई g डैश ऑफ x. डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन. ओके, दिस इज नथिंग बट डैश को हम डिफरेंशिएशन लिखते हैं. जैसे dy by dx लिखते हैं यानी मैं dy by dx को y डैश भी लिख सकता हूँ. ओके, अब देखो ये कैसे यूज करना है हमने. ये ज्यादा जगह पे यूज नहीं होने वाला है बट फ्रॉम द नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू यू शुड नो इट. अब देखो ध्यान से. जैसे मैंने लिखा y इक्वल टू साइन 2x. इसको डिफरेंशिएट करना है. अभी तक तो हमें पता है साइन x की डिफरेंशिएशन कितनी होती है? cos 2x. अगर मैं आपको बोलूं बेटा इसका वैल्यू बताओ dy by dx बताओ तो सभी क्या बोलेंगे इसका आंसर? cos 2x. बट दिस इज नॉट ट्रू. ओके, व्हाई? क्योंकि यहाँ पे x के साथ भी 2 लगा हुआ. ओके, तो जो ये हमारा फंक्शन है वो ऐसे है साइन ऑफ 2x. तो इसको देखो कैसे डिफरेंशिएट करना है. पहले तो आप एज इट इज साइन 2x को cos 2x लिखोगे. फिर आप लिखोगे मल्टीप्लाई बाई डिफरेंशिएशन ऑफ 2x. ठीक है. अब 2x की डिफरेंशिएशन क्या होगी? 2 बाहर आ जाएगा बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट और x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज 1. तो यहाँ पे dy by dx जो आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा ट्वाइस cos 2x. क्लियर? वेरी सिंपल. आपको क्या करना है, जो एंगल के अंदर वाला वैल्यू है उसको भी डिफरेंशिएट करना है. एक और देख लेते हैं हम. जैसे मैंने लिया y इक्वल टू cos 2x. अब इसका dy by dx क्या होगा? पहले तो cos की डिफरेंशिएशन माइनस साइन लिखेंगे माइनस साइन 2x फिर मल्टीप्लाई कर देंगे
अंदर वाले को डिफरेंशिएट फिर से कर देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 आएगा, तो डी बाई डी एक्स कितना आएगा, -2 sin 2x। क्लियर, वेरी सिंपल। बस एक ही काम करना है, एंगल के अंदर वाला जो वैल्यू है उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दें। ओके, एक और देखते हैं हम, शैल आई रब इट ऑफ? यस। जैसे मैंने लिखा y इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, इसको डिफरेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, साइन का बताओ क्या डिफरेंशिएशन होगा, आएगा कॉस ओमेगा टी, फिर मल्टीप्लाई एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, फिर मल्टीप्लाई एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा आपका, यह आएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्लियर, तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा आपका, आएगा ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी। वेरी सिंपल। क्लियर, ओके। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे, इसी फॉर्मूला पे, देख लो इसको एक बार। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, दैट विल मेक थिंग्स मोर इजी। y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, बताओ इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स करो, साइन की डिफरेंशिएशन एज इट इज कॉस एक्स स्क्वायर आएगी, और एंगल को फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, 2x, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, 2x कॉस एक्स स्क्वायर। इससे ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं करनी है। ओके, ऑलरेडी मैं आपको बहुत बता चुका हूं, राइट। एक बार फिर से हम मेन फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेते हैं, एंड देन वील क्लोज दिस लेक्चर। सारे फंक्शन में फिर से लिख लेता हूं, y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स, y इक्वल टू tan x, y इक्वल टू ln x, y इक्वल टू e पावर x, y इक्वल टू साइन ओमेगा x ओमेगा t या ओमेगा x लिख लो, y इक्वल टू कॉस ओमेगा x। सभी का डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स हमें पता है क्या आएगा, एन एक्स पावर एन माइनस वन, इसका डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स, टैन का सीकेंड स्क्वायर एक्स, नेचुरल लॉग का 1/x, एक्सपोनेंशियल का एज इट इज रहता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स। साइन ओमेगा एक्स का क्या आ जाएगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा क्योंकि एंगल को फिर से डिफरेंशिएट करना होता है, तो आएगा ओमेगा कॉस ओमेगा एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स आएगा इसमें माइनस ओमेगा साइन ओमेगा एक्स। ओके, with this your differentiation is over, and we'll meet in the next class with integration. Okay, see you in the next class. Please subscribe to my channel. Bye.